آئندہ مالی سال کے لیے 17,500 سے 18,000 ارب روپے کے حجم کا بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا بھی امکان۔ پیٹرولیم لیوی قیمت میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان مرتب کیا گیا۔ برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا۔ بجٹ میں کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا، پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا۔ سابق فاٹا کا ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا امکان۔ حکومت آئندہ مالی سال 20 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ بجٹ 2026 کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں نئے وفاقی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ کو بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ ملک کی معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ پاکستانی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا۔ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ کہ 23 میں یہ -2.2% تھی۔ چیلنجز اور بحرانوں کے باوجود ملکی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور حکومت مختلف بحرانوں سے نمٹنے میں کامیاب ہو رہی۔ معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک پر ٹیرف کے نفاذ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا، ہمیں یقین تھا کہ اس سال گروتھ 4% سے تجاوز کر جائے گی، مگر ایران جنگ، مانسون بارشوں اور امریکی ٹیرف کے نفاذ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے معاشی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ سروے دستاویزات کے مطابق شرح نمو 2.4% رہی، جبکہ ماہی گیری کے لیے ترقی کا ہدف 3% مقرر تھا، لیکن اس کی شرح نمو صرف 1.6% ریکارڈ کی گئی۔ بجٹ میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کمی، دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ 3,669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور کر لیا گیا۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب روپے۔ چاروں صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2,218 ارب رکھے گئے۔ وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 1,040 ارب روپے کی بچت کریں گے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 701 ارب، سندھ میں 110 ارب اور خیبر پختونخوا کے فنڈز میں 109 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ وفاقی بجٹ میں سولر پینلز، اسٹیشنری مصنوعات مہنگی نہ کرنے کا فیصلہ، جبکہ اسٹاک مارکیٹ پر بھی عائد ٹیکسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز واپس۔ اسٹیشنری اشیاء پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی مجوزہ تجویز بھی بجٹ کا حصہ نہیں بنے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے سب سے بلند انکم ٹیکس سلیب کی حد میں اضافے کیے جانے کا امکان، جبکہ زیادہ آمدن رکھنے والے افراد پر عائد اضافی سرچارج یا جرمانہ ختم کرنے کی تجویز زیر غور۔ برآمد کنندگان کے لیے ریلیف پیکج کے تحت 1% ایکسپورٹ ٹیکس ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط آئندہ چند دنوں میں ہوں گے۔ ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے اختتام پر یورپ میں کسی مقام پر کیے جا سکتے ہیں۔ تقریب میں شرکت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے سے متعلق دستاویزات کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی۔ معاہدہ بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے۔ ایران بھی اسی معاہدے کا اتنا ہی خواہاں ہے جتنا دیگر فریق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ تمام متعلقہ فریق اس پیش رفت کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ میں خود اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا، تاہم نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ کی نمائندگی کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لے گا، امریکہ فوری طور پر ایرانی بندرگاہوں پر عائد اپنی پابندیاں ختم کر دے گا۔ اس اقدام کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے دستاویزات آخری مرحلے میں ہیں۔ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاہدے پر دستخط جلد متوقع ہیں۔ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ سب اس پر خوش ہیں۔ پورا مشرق وسطی بھی اس پر خوش ہے۔ ایران کے معاملے پر اسرائیل سے بھی بات کی ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का राब्ता गुफ्तगू के दौरान ईरान के साथ ज़ेरे गौर मफाहमती याददाश्त और मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि अगरचे इसराइल इस मफाहमती याददाश्त का फरीक नहीं, ताहम नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के अज़्म को सराहा कि हतमी मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम इक़दाम शामिल होंगे। ट्रंप ने अज़्म जाहिर किया है कि ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम का मुकम्मल खात्मा होगा, अफसूदगी की बुनियादी तंसीबात को गैर फाल बनाया जाएगा, मिसाइल साजी की सलाहियत पर पाबंदी आयद की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि खित्ते में ईरान के इत्तेहादी ग्रोहों की हिमायत का खात्मा किया जाएगा। ईरान मुआहिदे के निकात का जायजा ले रहा है। मुमकिना मुआहिदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। जब हुक्काम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक इन्होंने कहा कि दाखिली सतह पर मुशावरत जारी है। जब तक तमाम मुतल्लिका फरीकैन हतमी इत्तेफाक राय तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक मुआहिदे को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान और कतर सालसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों और इक़दामात ने सिफारती अमल पर असर डाला। तेहरान अपनी बुनियादी रेड लाइन्स पर कायम है और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। गलत हिकमत अमली जल्दबाजी के फैसले सूरत हाल बदतरीन कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आलमी ताकतों को संगीन नताइज की वार्निंग जारी कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा, किसी भी मुहिम जोई से आलमी तवानाई ढांचा तबाह होगा। गलत इक़दाम से आलमी तवानाई की मार्केटें बुरी तरह मुतासिर होंगी। जारियत पसंद खित्ते में ना खत्म होने वाली दलदल में फंस जाएंगे। दुनिया को खबरदार करते हैं, अब दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान देखेगी। हम हारने वालों से लड़ने से नहीं डरते। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, ईरान जंग में हलाक या जख्मी होने वाले अमरीकियों की तादाद ट्रंप के दादोशुमार से बहुत ज्यादा है और ये तादाद मजीद बढ़ेगी। इस बार जंग सिर्फ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। देखते हैं क्या होता है। फीफा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरे हल्के में जम्मू के मुहाजिरीन मुकीम हैं। मुहाजिरीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कौमी असेंबली के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा, 25 लाख मुहाजिरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन को उनकी नशिस्तों से महरूम कैसे किया जा सकता है। इनका कहना था कि माजी में तमाम पार्टियों के लीडर कैद रहे। बानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद में है। पीटीआई अरकान ऐवान के तकद्दुस को पामाल न करे। हमने मिलकर ऐवान को मजबूत बनाना है और इसका तकद्दुस बरकरार रखना है। कहा, कानून साजी की अमल में रखना डालने का कोई जवाज नहीं है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात के जरिए मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना चाहता है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है न कोई जवाज है। इनका कहना था कि भारतीय वजीर पानी CR पटेल की जानिब से पाकिस्तान की तरफ एक कतरा भी पानी न पहुँचने देने के बयान पर दफ्तर खारजा ने कहा, हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इक़दाम जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल देंगे। ऐसे इक़दाम से पैदा होने वाले सूरत हाल का जिम्मेदार हिंदुस्तान होगा। पाकिस्तान तमाम जरूरी इक़दाम उठाएगा। पाकिस्तान ने मशरिक़े वस्ता और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो जंग बंदी के मुआहिदों का एहतराम करें और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल मेतन तवक्कल की GHQ रावलपिंडी आमद। तुर्क कमांडर को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात ज़ेर गौर आए। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क बरी अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इस दौरान पेशा वराना अमूर इलाकाई बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क बरी फौज के कमांडर की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबत सिद्धू से भी मुलाकात में अस्करी ताउन और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। दिफाई ताउन और इदारा जाती रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार।
पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में कायम मुकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की, जबकि इनकी अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। शहदा के जस्ते खाकी इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास। पाकिस्तान रेलवेज में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी। रेलवेज के गवर्नेंस निज़ाम में बेहतरी, डिजिटाइजेशन, रेलवे लाइन्स की तोसी की जाएगी। इलाकाई रवाबत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी शोबे की शमूलियत और माली इस्तेहकाम कायम करने के अहदाफ ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने जदीद कोचेज का इस्तेमाल, ट्रेनों और स्टेशन पर मुसाफरों के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। ML1, ML2 और ML3 और दीगर ट्रैक्स की अपग्रेडेशन, राइट साइजिंग समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म। इंतजामिया को हर शहर के चौक चौराहों में शहरियों के लिए साए का एहतमाम करने की भी हिदायत कर दी। मरियम नवाज शरीफ का सख्त गर्मी के पेश नज़र हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी, पंखे और कूलर नस्ब करने का हुक्म। दफातर में आने वाले आवाम को ठंडा पानी पेश करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने आवाम से अपील की है कि बहुत ज्यादा गर्मी और लू के पेश नजर बिला जरूरत घर से निकलने से परहेज करें। खातीन, बुजुर्गों और बच्चों का सख्त गर्मी के मौसम में खसूसी ख्याल रखा जाए। इनका कहना था कि स्कूल समर कैंप में तलबा और साथिया के लिए भी ठंडा पानी, पंखे और एयर कूलर जरूर नस्ब करें। ट्रैफिक पुलिस को चलचलाती धूप में मोटरसाइकिल सवारों को बिला जरूरत खड़ा न करने की हिदायत की। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग का मिशन ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज हो गया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने के लिए मुआहिदा तय। सिविल सेक्रेटेरिएट में हुकूमत पंजाब और निजी शोबे के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर अहमद ने दस्तखत किए। मंसूबे के तहत लाहौर में 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाई जाएंगी। शहर भर में 1500 स्मार्ट डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। मंसूबे पर 8.1 अरब रुपए की इब्तदाई सरमायाकारी की जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। किराना स्टोर्स, मैरिज हॉल्स, मार्केट के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा। 9 की बजाय 10 बजे बंद करना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार, दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 9 बजे ही बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा घर, फल, सब्जियों की दुकानें रात 11 बजे बंद करना होंगी। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिक और अस्पतालों को इस्तिस्ना हासिल होगा। बेकरीज, दूध दही की दुकानों, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।